آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی خود کو مہذب کہلانے والی قوموں نے اپنے چہروں پر انسانیت کے نقاب ضرور اوڑھ رکھے ہیں، لیکن اصل میں وہ آج بھی اس دور میں زندہ ہیں جسے حیوانیت کے عروج کا دور کہا جاتا تھا، جب طاقت کی زبان ہی بولی جاتی تھی۔ آج کا طاقتور انسان بھی جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے اصول پر کار فرما ہے۔ خود کو انسانی امن کا ٹھیکیدار کہلانے والی یہ طاقتیں امن اور انسانیت جیسے الفاظ کے وہی مطلب سمجھتی ہیں جو ان کے نزدیک ٹھیک ہیں۔ یہ وہ انسان نما درندے ہیں جو دنیا کو اپنی اینک سے اپنی مرضی کے مطابق دیکھتے ہیں، اپنی مرضی کے ورلڈ آرڈر کمزور انسانوں پر ٹھونسنے کے درپے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محض اس خوف سے کہ کہیں ہمارے زمینی آقا ناراض نہ ہو جائیں، کیا ہم اپنی قومی غیرت اور عزت نفس کو داؤ پر لگا دیں؟ چلیے یہی صحیح، لیکن یہ سلسلہ آخر کب تک، کہاں تک چلے گا؟ یہ بات بات پر کمپرومائز، سمجھوتا آخر ہمیں ذلت کی کن اندھیری راہوں پر گھسیٹ رہا ہے؟ کیا پاکستان بننے کی 7 دہائیوں کے بعد بھی ہم صرف اس قابل ہیں کہ اپنے آقا بدل لیں؟ کچھ غدار صفت محض چند روزہ اقتدار کے لیے پاکستان کے کروڑوں عوام کی عزت نفس کو داؤ پر لگا کر پاکستان کی سالمیت کے نشان، پاکستان کا مان، پاکستان کے پرامن ایٹمی پروگرام پر سمجھوتا خفیہ یا علل اعلان کر کے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے اقتدار کو دوام دے سکتا ہے تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے۔ ایک پاکستانی کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہوٹا کی ترقی میں ہماری بقا کا راز ہے۔ جدید دور کے غنڈے صرف طاقت کی زبان سمجھتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال اسرائیل کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ کہوٹا پاکستان کا مان ہے، پاکستان کی آبرو ہے۔ جان لیں وہ سب جو اس پر سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں کہ یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ ابھی اس قوم میں اتنی غیرت باقی ہے کہ وہ اپنی آبرو کا دفاع کر سکے۔ کہوٹا پاکستان کے دشمنوں کے سینے میں کھٹکتا رہے گا۔ کہوٹا عالمی سازشوں کی زد میں تھا اور ہے۔ پاکستان کے دشمن، عالم اسلام کے دشمن اس کی تباہی پر متفق ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے کہ پاکستانی عوام بھی اسی مسئلے پر متحد ہے، سیسا پلائی دیوار کی طرح۔ وہ ڈٹ جائیں گے ہر طوفانی یلغار کے سامنے۔ کہوٹا کی طرف اٹھنے والے ہاتھ توڑ دیے جائیں گے، یہ دیکھے بغیر کہ ان پر کس ملک کی مہر لگی ہے۔ جے ایف کینیڈی ایئرپورٹ کے یوں تو سارے ہی ٹرمینل بہت مصروف رہتے تھے، لیکن امریکن یونائٹڈ ایئر لائن سے منسلک برٹش ایئر ویز کے اس ٹرمینل پر معمول سے زیادہ ہی رش تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس ٹرمینل کو آنے والا راستہ ایک ہی تھا۔ پٹسبرگ سے وہ امریکن ایئر لائن کی جس پرواز کے ذریعے نیو یارک کے جے ایف کینیڈی ایئرپورٹ تک پہنچا تھا وہ لیٹ ضرور تھی، لیکن اتنی زیادہ بھی نہیں کہ اسے اپنے منصوبے کے مطابق کام کرنے سے روک سکتی۔ پٹسبرگ سے لندن تک کا ٹکٹ اس نے 2 الگ الگ ایئر لائن سے بک کروایا تھا، لیکن عین وقت پر جب اسے علم ہوا کہ نارتھ ویسٹ ایئر لائن نے اپنی وہ فلائٹ کسی فنی خرابی کی وجہ سے کینسل کر دی ہے جس کے ذریعے اس نے نیو یارک پہنچنا تھا، تو اس کے دل کی دھڑکن بے قابو ہونے لگی۔ اس نے زیر لب کہا، اف میرے خدا، کیا میری 3 سال کی محنت پر پانی پھر جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس نے سوچا اور لرز کر رہ گیا۔ اس منصوبے کی ناکامی کا مطلب تھا ایک تھکا دینے والی جدوجہد کا خاتمہ، اور وہ بھی بلا مقصد۔ نارتھ ویسٹ ایئر لائن کے کاؤنٹر پر ایک موٹی سی درمیانی عمر کی نیگرو عورت کھڑی تھی۔ اس نے فیصلہ کن لہجے میں اس عورت سے کہا، مجھے کنیکٹڈ فلائٹ لینی ہے مس، میرے لیے آپ کی اگلی فلائٹ کا انتظار بھی ممکن نہیں ہے، مہربانی سے جیسے بھی ممکن ہو مجھے بر وقت نیو یارک پہنچانے کا بندوبست کیجیے، بس جیسے بھی ممکن ہو۔ سیاہ فام عورت جس نے اپنے چہرے پر اتنی زیادہ لیپا پوتی کی ہوئی تھی کہ اس کی اصل جلد کا رنگ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ عام حالت میں شاید وہ ایسے لہجے میں کسی کو بات کرنے کی اجازت نہ دیتی، لیکن آج کل ملازمت اور ایسی اچھی ملازمت ایک مرتبہ پھر ہاتھ سے نکل جاتی تو پھر مشکل سے ہی ہاتھ آتی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ اس ملک میں مرفی لا نافذ ہے، یہاں ہائر اینڈ فائر کی پالیسی چلتی ہے، اور اس ایئر لائن کے مالکان اپنے ملازمین کی باتوں پر تو کبھی کان نہیں دھرتے، صرف گاہکوں کی سنتے تھے۔
बड़ी मुश्किल से बेचारी ने दूसरी एयरलाइन पर उसकी रवानगी का बंदोबस्त किया था और उस रोज ये कैनेडी एयरपोर्ट की तरफ जाने वाली वाहिद एयरलाइन थी। उसकी खुशकिस्मती थी कि जिस टर्मिनल पर वो उतरा था उसी टर्मिनल से उसे ब्रिटिश एयरवेज वाले टर्मिनल की तरफ जाने वाली चैनल बस मिल गई थी। बस में बैठते हुए उसके दिल की धड़कन बेकाबू हो रही थी क्योंकि वो 10 मिनट लेट था। अगर मतलूबा फ्लाइट मिल जाती तो वो आध घंटा पहले वहां आ जाता। चैनल बस ने जब उसे मुकर्रर टर्मिनल तक पहुंचाया तो मजीद 10 मिनट गुजर गए थे। अपना छोटा सा बैग गले में लटकाए वो करीबन भागता हुआ उन सीढ़ियों की तरफ जा रहा था जिनके जरिए वो लाउंज तक पहुंच सकता था। बरकी सीढ़ियों के खात्मे पर जैसे ही उसने फर्श पर कदम रखे तो उसका चेहरा खिल उठा। उसके सामने अबू अहमद खड़ा मुस्कुरा रहा था। दोनों बेकरारी से एक दूसरे की तरफ लपके। हम्माद मेरे भाई, मैं तो परेशान हो गया था, अबू अहमद ने उसे गले लगाते हुए कहा। अबू हम्माद ने कहा, फ्लाइट बदल कर आना पड़ा। दोनों ने बगलगीर होते हुए इस एहतियात को मलहूज़ खातिर रखा था कि जैसे भी मुमकिन हो वो सामने कोने में नस्ब कैमरे की रेंज में न आ जाएं। ये शॉर्ट सर्किट कैमरे थे जो हर वक्त घूमते हुए बाहर का मुकम्मल नजारा अंदर की स्क्रीनों को मुंतकिल कर दिया करते थे। ऐन उन लम्हात में जब कैमरे ने अपना रुख दूसरी तरफ बदला, अबू अहमद ने अपने लंबे कोट की जेब से एक छोटा सा पिस्तौल निकालकर इतनी फुर्ती से अबू हमाद की जेब में मुंतकिल किया कि खुद अबू हमाद को भी एहसास न हो सका। अबू हमाद बोला, खुदा हाफिज ब्रदर, अगली मुलाकात अगर इस दुनिया में न हुई तो जन्नत में होगी। और वो उससे अलग हो गया। लाउंज की तरफ बढ़ते हुए दोनों से एक बावर्दी शख्स ने दरियाफ्त किया, यूनाइटेड या ब्रिटिश? अबू अहमद ने कहा, ब्रिटिश। उस शख्स ने साइफर मशीन की तरफ इशारा किया, इस तरफ जनाब। अबू अहमद ने बड़े इत्मीनान से अपना बैग साइफर मशीन पर रखा और सिक्योरिटी क्लियर होने पर उठा लिया। इस दरमियान उसने कनखियों से अबू हम्माद को यूनाइटेड एयरलाइन के काउंटर से मुल्हिका उस रास्ते की तरफ घूमते हुए देख लिया था। अबू हम्माद बड़े इत्मीनान से चलता हुआ उस बाथरूम के सामने तक पहुंच गया था जिससे मुल्हिका लाउंज में गेट नंबर 22 की कतार थी। गेट नंबर 22 पर ब्रिटिश एयरवेज की लंदन जाने वाली फ्लाइट के मुसाफिर सवार हो रहे थे। यहाँ एक और साइफर मशीन नस्ब थी जिससे दोबारा हैंड बैग गुजारने के बाद गेट के दरवाजे पर मुस्तैद ब्रिटिश एयरवेज के 2 ऑफिसर सिर्फ उस मुसाफिर को गेट के अंदर जाने की इजाजत देते जिसका पासपोर्ट और टिकट वो चेक कर लेते। उमूमन ब्रिटिश एयरवेज के जहाज पर अपने प्यारों को रुखसत करने वाले इसी चोर रास्ते से घूमकर जहाज के दरवाजे तक आया करते थे। सिक्योरिटी हुक्काम को इस बात का इल्म था, लेकिन वो मुतमईन रहते थे कि जहाज में सवार होने से पहले चूंकि मुसाफिरों को एक मर्तबा फिर तलाशी के मराहिल से गुजरना पड़ता है, यूं भी टिकट और वीजे के बगैर किसी को गेट के नजदीक फटकने की इजाजत नहीं थी। इसलिए किसी गैर मुतल्लिका शख्स के लिए जहाज तक पहुंचना मुमकिन नहीं था। यहाँ मुसाफिरों को छोड़ने के लिए आने वालों का इज्तिमा खतरे का बायस नहीं बनता था। अबू अहमद फ्लाइट से 2.5 घंटे पहले यहाँ पहुंचा था। उसे 1 घंटा गुजर गया था अपने मेहमान का बेचैनी से इंतजार करते, लेकिन अभी तक दूर दूर तक उसे अपने मेहमान की आमद का नामो निशान नहीं मिल रहा था। साइफर मशीन से गुजरने के बाद उसने सामने ब्रिटिश एयरवेज के काउंटर का रुख करने की बजाय लाउंज में बिछी कुर्सी पर बैठने को तरजीह दी। उसने वक्त गुजारी के लिए एक बैग से कुछ कागजात निकाल कर उन्हें पढ़ना और उन पर निशानात लगाने शुरू कर दिए। यूं लगता था जैसे वो कोई मसरूफ कारोबारी शख्स है जो उस वक्त भी कोई कारोबारी उलझन सुलझा रहा है। सामने काउंटर पर अब मुसाफिरों की कतारों में इजाफा होने लगा था। अचानक ही उसकी मुराद बर आई जब उसने सर के दरमियानी हिस्से पर कपड़े की गोल टोपी रखे एक ढलती उम्र के यहूदी को साइफर मशीन से अपना सामान उठाकर उस तरफ आते देखा। अबू अहमद उस शख्स को 1000 पर्दों में पहचान सकता था। गो कि वो आज 6 साल बाद उसका चेहरा देख रहा था, लेकिन ये चेहरा ऐसा नहीं था जो वो मरते दम तक कभी भूल पाता। ये शमून था, तिल अवीव के इंटरोगेशन सेंटर का साबिका इंचार्ज, मोसाद का आला अफसर, सैकड़ों बेगुनाह फलस्तीनियों का कातिल। शमून ने अपने हाथों दर्जनों फलस्तीनी बच्चों, बूढ़ों, औरतों और नौजवानों की जान ली थी, लेकिन आज तक उसने किसी को पिस्तौल की गोली से नहीं मारा था। वो अपनी इस शोहरत पर फख्र किया करता था कि उसने दर्जनों फलस्तीनियों को अजियतें दे देकर सिसक सिसक कर मरने पर मजबूर किया। मोसाद के इस अजियत खाने में जिसका वो इंचार्ज था, एक बड़ा मर्तबान उसकी मेज पर सजा रहता था जिसमें उसकी दरिंदगी की भेंट चढ़ने वाले बेगुनाह फलस्तीनियों के जिस्म के उतारे गए कान महफूज रहते थे। जब उनसे बदबू उठने लगती तो उन्हें फेंक कर नए गिरफ्तारों के कान उसमें भरने शुरू हो जाते। वो अपने हर शिकार का तारुफ इसी हवाले से करवाया करता था। अबू अहमद को याद था जब उसे इस्राएली खुफिया पुलिस ने इंतिफादा के आगाज पर एक रोज अचानक उनके एक ठिकाने पर छापा मार कर गिरफ्तार किया था। ये कोई ऐसा खुफिया ठिकाना भी नहीं था, एक छोटा सा होटल था जिसका मालिक उनका एक फलस्तीनी साथी ही था। लेकिन इस बात का इल्म तो उन्हें बाद में हुआ कि उनका वो साथी दरअसल
इसराइली खुफिया पुलिस का टाउट था। और एक रोज जब बैरूत से सरहद उबूर करके आने वाले एक फलस्तीनी मुजाहिद को, जो इंतिफादा तहरीक की कमान संभालने के लिए मरकजी कमान की तरफ से इसराइल में दाखिल हुआ था, वो इस होटल में अपनी मीटिंग के लिए आया तो अचानक ही इसराइली फौज ने होटल को घेरे में ले लिया। शायद इसराइली कमांडोज बहुत पहले से मंसूबाबंदी करने के बाद यहाँ छुप गए थे और फलस्तीनी मुजाहिद के अंदर दाखिल होते ही वो हरकत में आ गए। मुकाबला करने को उनके पास था ही क्या, सिर्फ एक पिस्तौल, वो भी बैरूत से आने वाले मुजाहिद साथी के पास। अबू अहमद ने बैरूत से आने वाले साथी से कहा, गिरफ्तारी तो यकीनी है ब्रदर, लेकिन हम आपको जरूर बचा सकते हैं। जब इसराइली फौज के कमांडोज उन्हें हाथ खड़े करके बाहर आने की वार्निंग दे रहे थे, फलस्तीनी मुजाहिद बोला, ये बुज़दिली होगी अबू अहमद, मैं तुम्हारे साथ ही गिरफ्तार हूँगा या हम सब फरार होंगे। अबू अहमद बोला, नहीं ब्रदर, खुदा के लिए वक्त की हिकमत को समझो, अगर हम सब पकड़ लिए गए तो तहरीक खत्म हो जाएगी। हमारी जानों से ज्यादा अहमियत इस वक्त तहरीक को जिंदा रखने की है। यूं भी अभी तक अगली प्लानिंग का इल्म तुम्हारे अलावा और किसी को नहीं। इधर आओ, इस तरफ। उसने करीबन हाथ खींचते हुए उसे होटल के पिछले दरवाजे की तरफ खींचा। इस दरवाजे का रास्ता मकबूजा बैतुल मुक़द्दस की उस गुंजान आबाद गली में खुलता था, जिसके हर मकान पर किसी भी फलस्तीनी मुजाहिद के लिए महफूज पनाहगाह मौजूद थी। अबू अहमद का दिल गवाही दे रहा था कि अगर उनका कमांडर किसी भी तरह इस रास्ते से निकल गया तो इंशाअल्लाह गासिबों की दस्तरस से महफूज हो जाएगा। कमांडर ने अचानक ही पिस्तौल निकालकर छोटे से हॉल कमरे में लगे काउंटर के पीछे खड़े उस मुनहनी से अरब को ललकार कर रुक जाने का हुक्म दिया, जो काउंटर की आड़ लेकर शायद किसी अकबी दरवाजे से भाग जाने की कोशिश में था। 1 मिनट ठहरो, मैंने भी होटल का हिसाब बेबाक करना है। अपने दीन, अपने वतन और लोगों से बगावत और दुश्मन का एजेंट बन जाने के जुर्म में तुम्हें सजाए मौत का हुक्म सुनाया जाता है, जिस पर अभी और इसी वक्त अमल दरामद होगा। कमांडर के मुंह से निकलने वाले अल्फाज ने उसके चेहरे का रंग जर्द कर दिया। काउंटर वाले ने मदद के लिए अबू अहमद को पुकारा। अबू अहमद तुम अबू अहमद ने दांत पीसते हुए कहा, चुप कर गद्दार, काश हमें कुछ मोहलत मिल जाती और हम तुम्हारे जिस्म की एक एक बोटी नोच कर उसे सहराई गिद्धों की खुराक बना सकते। काश तुम्हें अजियतनाक मौत दी जा सकती। वो बोला, देखो तुम लोग बच नहीं सकोगे, अगर तुमने मुझे मार दिया तो वो तुम सबको। अभी उसकी बात नामुकम्मल ही थी जब कमांडर की पिस्तौल ने यक्के बाद दीगरे 2 शोले उगले और गद्दार अपने नापाक वजूद के साथ काउंटर पर औंधा गिर पड़ा। अचानक ही एक ख्याल अबू अहमद के दूसरे साथी हमदान को सूझा। उसने काउंटर के दूसरे सिरे पर मौजूद मिट्टी के तेल का चूल्हा काउंटर पर उलट दिया और अपने पास मौजूद माचिस की जलती हुई तीली उस पर फेंक दी। चंद सेकंड के अंदर ही 3 अमल वकू पजीर हुए। कमांडर फी अमानिल्लाह कहकर होटल के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया। मकामी आबादी के मुजाहिदीन ने जब इसराइली फौजियों को होटल घेरे में लेते देखा तो वो सूरत हाल की नजाकत जान गए थे। उन्होंने फौरन ही अपने मकानों और गलियों की बत्तियां बुझानी शुरू कर दी। ये अंधेरा घेरे में आने वाले मुजाहिदीन को फरार में सहूलत बहम पहुंचाने के लिए किया गया था। पलक झपकने में आग ने लकड़ी की इस इमारत को बारूद के ढेर में बदल दिया। उसके साथ ही महफूज दरवाजे से अबू अहमद और हमदान हाथ उठाए बाहर निकल आए। उनके ताक़ुब में होटल में मौजूद 3 दूसरे गाहक भी बाहर आ गए थे। इसराइली फौज चीलों की तरह उन पर लपकी और उन्हें अपने हाथ में पकड़ी बंदूकों के बट और ठोकरें मारते हुए अपने ट्रकों की तरफ ले जाने लगी। आग इतनी तेजी से फैली थी कि उन लोगों के लिए अंदर मौजूद अपने टाउट को बचाने का कोई रास्ता बाकी नहीं बचा था। फौजियों में मौजूद मोसाद के एक अफसर ने अपनी कहरनाक निगाहों से बारी बारी उन सब का जायजा लिया। फिर वो अहमद की तरफ पलटा, अंदर कितने लोग मौजूद हैं? अहमद बोला, मुझे कुछ इल्म नहीं, हम तो हाथ उठाए बाहर आने की तैयारियां कर रहे थे जब अचानक आग भड़क उठी। उसने मासूमियत से जवाब दिया। उसने इतनी जोर से थप्पड़ अबू अहमद के कान पर मारा था कि उसे कान का पर्दा फटता महसूस हुआ। तुम झूठ बोल रहे हो। उसके साथ ही वो मखहूरों में मौजूद उस बूढ़ी खातून की तरफ पलटा जो अपने बच्चे के साथ हाथ उठाए बाहर निकल आई थी। उसने बूढ़ी लेकिन जवां अज़ाइम रखने वाली मुसलमान औरत से यही सवाल दरियाफ्त किया। वो बोली, मुझे इल्म नहीं, मैं तो अपने बेटे के साथ दूसरे कोने में बैठी खाना खा रही थी जब अचानक आग भड़क उठी। हम तो आप लोगों के ललकारने पर हाथ खड़े करके दरवाजे की तरफ आ रहे थे। हमें तो ये भी मालूम नहीं हो सका कि आग कब और कैसे लगी। मोहतरम खातून ने बड़े पुरअज़्म लहजे में जवाब दिया। मोसाद के कैप्टन की आंखों में खून उतर आया। उसने अपनी टांग पूरी कुव्वत से बूढ़ी औरत के पेट में मारी। वो कराहती हुई उलटकर दूसरी तरफ जा गिरी। बूढ़ी औरत के नौजवान बेटे ने एक लम्हे के लिए अपनी माँ की तरफ देखा, फिर अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया।
कैप्टन ने होटल से बरामद होने वाले तमाम 9 गिरफ्तारों से यही सवाल किया था, लेकिन उसे सब ने वही जवाब दिया जो अबू अहमद दे चुका था। हर गिरफ्तार होने वाले के साथ उसने यही सुलूक दोहराया। फिर वो कुछ सोच कर पीछे हट गया। उसने अपने एक साथी नौजवान लेफ्टिनेंट को अपने करीब बुलाकर कुछ हिदायत दी। उसके साथ ही उन लोगों ने इसराइली फौजियों के एक ट्रक और जीप को तेज रफ्तारी से मकामी आबादी की तरफ बढ़ते देखा। अबू अहमद समझ गया कि ये लोग कमांडर की गिरफ्तारी के लिए गए हैं, लेकिन वो मुतमईन था और उसका दिल गवाही दे रहा था कि अब तक उनका कमांडर महफूज हाथों में पहुंच गया होगा। और यही हुआ। इस बात का इल्म उन्हें तेल अवीव जाने के बाद हुआ कि इसराइली फौजियों को वहां से कुछ हाथ नहीं लगा था। इन सब फलस्तीनियों को वेश्यों की तरह मारते पीटते इसराइली अपने ट्रकों तक लाए और नीम बेहोश 9 गिरफ्तारों को एक ट्रक में फेंककर अपने एक अड्डे की तरफ ले गए। यहाँ 3 रोज तक जिन अजियतनाक तफ्तीशी मराहिल से उन्हें गुजरना पड़ा, वो अबू अहमद की जिंदगी का बड़ा भयानक और कभी न भूलने वाला हादसा था। 3 दिन तक जब इन दोनों को मार मार कर अधमुआ कर दिया गया, तो चौथे रोज अबू अहमद और हमदान को उनके दर्द से टूटते और जख्मों से चूर बदन के साथ एक फौजी जहाज में रातों रात तेल अवीव पहुंचा दिया गया। तेल अवीव के जिस टॉर्चर कैंप में पहुंचाया गया, उसकी दास्तानें दोनों बचपन ही से सुनते आ रहे थे। यहाँ से अव्वल तो कोई खुशनसीब ही जिंदा बच कर आया करता था। अगर कोई आ भी जाता तो मुकम्मल जिस्म के साथ शायद ही कभी वापस लौटता। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में जिस फलस्तीनी का कान कटा हुआ नजर आता, तो लोग जान जाते कि ये बदनसीब तेल अवीव के टॉर्चर सेल से होकर वापस लौटा है। बेशतर लौटने वाले चलने फिरने से मोहताज थे। यहाँ वो बदकिस्मत औरतें भी मौजूद थीं जिनके जिस्मों को अजियतनाक मराहिल से गुजरने के बाद सिगरेटों से दागदार किया गया था, लेकिन जो बेगुनाह साबित होती थीं। उनका अगर कोई गुनाह था तो सिर्फ इतना कि वो फलस्तीनी हैं और उनका ताल्लुक एक ऐसी बदबख्त कौम से है जो 50 साल जुल्म सितम की चक्की में पिसने के बाद भी अपना हक मांग रही थी, जबकि उसूलन उन्हें अब तक अपने हक आजादी से दस्तबरदार होकर बेगैरतों जैसी जिंदगी जीना चाहिए था। बिल्कुल वैसी जिंदगी जिसका तसव्वुर सुपर पावर के यहाँ पाया जाता है। शमून से अबू अहमद का पहला तारुफ इसी ज़िबा खाने में हुआ था। वो लोग रात गए तेल अवीव के इस इंटरोगेशन सेंटर तक पहुंचे थे। हवाई अड्डे से ही उनकी आंखों पर पट्टियां बांधकर, दोनों हाथ हथकड़ियों से बाजुओं के पीछे बांधकर उन्हें इसराइलियों ने कमीज के कॉलरों से पकड़कर ट्रक में फेंका था और इसी तरह सफर करते वो इंटरोगेशन सेंटर तक लाए गए थे। उनकी आंखों पर पट्टी इतनी कसकर बांधी गई थी कि दोनों खुद को अंधा महसूस कर रहे थे। हवाई अड्डे से इंटरोगेशन सेंटर तक उन्हें अपने जिस्मों पर लगने वाली ज़रबात की गिनती भूल गई थी। सच्ची बात तो ये थी कि मुसलसल मार खाते खाते अब उनके जिस्म ही बेहिस हो गए थे। जब उनकी आंखों से पट्टी खोलकर और हाथों से हथकड़ियां उतारकर उन्हें 2 अलग अलग कोठरियों में फेंका गया, तो दोनों को काफी देर तक कुछ नजर ही नहीं आया। 6 साल पहले ये वाकया पेश आया था। उसके बाद अबू अहमद ने हमदान को नहीं देखा। उसे सिर्फ इतना इल्म था कि शमून ने उसके साथी के जिस्म से मुख्तलिफ मराहिल में गोश्त उतार उतार कर उसे एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाने पर मजबूर कर दिया था। उसका चेहरा इस बुरी तरह मस्ख हो चुका था कि उसकी शक्ल पहचानना मुमकिन नहीं रहा था। एक रोज रात की तारीकी में उसकी मस्ख शुदा लाश इसराइली दरिंदे मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में उसके घर के सामने फेंक कर चले गए। उस बदकिस्मत बस्ती के मकीनों के लिए ये कोई अनहोनी बात नहीं थी, ये तो यहाँ का मामूल था। आए रोज किसी न किसी मुसलमान मर्द औरत को अगवा करके ले जाना और फिर उसको माजूर या मुर्दा हालत में फेंक कर चले जाना इसराइलियों का वतीरा था। कई मरतबा जान पर खेल कर फलस्तीनियों ने ये वाकयात शवाहिद के साथ बैनुल अक़वामी प्रेस तक पहुंचाए थे, लेकिन या तो वो शाया न हो सके, और अगर किसी ने अपनी जान पर खेल कर उन्हें शाया कर ही दिया तो मुहज़्ज़ब अक़वाम के कानों पर जूं तक न रेंगी। खुदा जाने इसराइल के हवाले से फलस्तीनियों पर बहीमत की किसी खबर को मगरबी प्रेस क्यों बर्दाश्त नहीं करता था। मुहज़्ज़ब अक़वाम की ज़बानों पर ताले क्यों लग जाते थे। इंसानी हुकूक की अलमबरदार तंजीमों की बयानबाजी और चीखो पुकार का कोई नोटिस क्यों नहीं लिया जाता था। जब अबू अहमद को शमून के सामने पेश किया गया तो उसकी हालत ऐसी थी कि उसके पांव ढंग से जमीन पर नहीं लगते थे। बड़ी मुश्किल से वो अपने कदमों पर खड़ा हुआ। हस्बे मामूल उसने अपने सामने शीशे के एक बड़े जार में मजलूमों के जिस्मों से नोचे गए कान सजा रखे थे। शमून ने कहकहा लगाते हुए सिगार सुलगाया। अगर तुम फलस्तीनी हो तो मेरा नाम जरूर जानते होगे। बैतुल मुक़द्दस और हैफा की माएं अपने बच्चों को दूध पिलाने के बाद सबसे पहले मेरे जुल्म की दास्तानें सुनाती हैं। सिगार का धुआं उसके मुंह पर फेंकते हुए वो अबू अहमद से मुखातिब हुआ। मैं तुमसे किसी सूरत ये वादा नहीं करूंगा कि तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि अगर तुम मेरे 2 सवालों का जवाब दो तो तुम्हें कुछ रियायत जरूर मिल जाएगी। अबू अहमद को उसका मकरूह चेहरा ढंग से दिखाई और सुनाई नहीं दे रहा था। वो लोग जो उन्हें यहाँ तक लाए थे वह
وحشیوں کی طرح بیت المقدس سے تل ابیب تک انہیں مارتے پیٹتے آئے تھے۔ اس دوران انہیں کسی ایک وقت بھی ڈھنگ کا کھانا نصیب نہیں ہوا تھا۔ انہیں اتنا ہی کھانا دیا گیا جتنا ان کے زندہ رہنے کے لیے کافی تھا۔ شمعون نے ابو احمد کے منہ کے قریب ایک مرتبہ پھر اپنے حلق میں موجود سگار کا دھواں چھوڑتے ہوئے کہا، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ بیروت سے تمہارا جو ساتھی یہاں آیا تھا وہ کہاں ہے؟ اور میرا دوسرا سوال ہے کہ ہوٹل کو آگ کس نے لگائی تھی؟ میں جانتا ہوں تم میری آواز سن رہے ہو اور اس وقت تک سوچنے سمجھنے سے آری نہیں ہوئے۔ میں تم پر یہ واضح کر دوں کہ میرے سوالات کے جوابات تمہیں دینے ہوں گے۔ تمہاری زبان نہیں دے گی تو تمہاری ہڈیاں دیں گی۔ میں ایک ایک کر کے تمہارے جسم کی ساری ہڈیاں توڑ دوں گا۔ تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ میں تم سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی چھین لوں گا۔ کیا تم ایک مخبوط الحواس اپاہج کی زندگی گزارنا پسند کرو گے؟ ابو احمد کے قدم ضرور ڈگمگا رہے تھے لیکن عزائم نہیں۔ وہ بولا، مجھے ان باتوں کا کچھ علم نہیں۔ میں تو ہوٹل میں حسب معمول قہوہ پینے گیا تھا کہ فوج نے ہوٹل کو گھیرے میں لے لیا۔ ہم لوگ باہر آنے لگے تو ہوٹل کو آگ لگ گئی۔ شمعون کی خاصی لمبی تھی تو یہ بات ہے۔ اس نے کمرے میں موجود 2 سپاہیوں کو اشارہ کیا اور انہوں نے بجلی کی سی پھرتی سے ابو احمد کے دونوں ہاتھ لوہے کے مضبوط کنڈوں سے جکڑ کر اسے کرسی پر بٹھا دیا۔ اس کرسی نے آج تک نہ جانے کتنے بے گناہوں کا خون چوسا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں اسی طرح جکڑے ہوئے تھے کہ اس کا جسم حرکت کرنے کے قابل بھی نہ رہا تھا۔ شمعون بولا، کیوں نہ میں پہلے تمہارے جسم کا امتحان لے لوں؟ یہ کہتے ہوئے وہ گھوم کر ابو احمد کی پشت پر پہنچا اور جلتا ہوا سگار اس کے دونوں کندھوں کے درمیان لگا دیا۔ ابو احمد کی قمیص کیا مدافعت کرتی، آگ اس کے گوشت کو جلانے لگی۔ وہ شدت کرب سے چلاتے ہوئے شمعون کو گالیاں دے رہا تھا لیکن جواب میں شمعون کے قہقہے کمرے کے در و دیوار ہلا رہے تھے۔ ان قہقہوں میں اس کے دونوں جلاد سپاہی بھی اس کا ساتھ دے رہے تھے اور یوں لگتا تھا جیسے یہ ان لوگوں کا دل پسند مشغلہ رہا ہو۔ جیسے جیسے ابو احمد کی چیخیں بلند ہو رہی تھیں اس کے ساتھ ان کے قہقہے بلند ہوتے تھے۔ وہ بچوں کی طرح ناچتے ہوئے اس کی چیخوں پر اپنی بے پناہ مسرت کا اظہار کر رہے تھے۔ شمعون چند سیکنڈ کے لیے اس کے جسم پر سگار سے آتشی ضرب لگاتا، پھر سگار کا کش لے کر دھواں اس کی طرف اچھال دیتا۔ یہ شیطانی عمل کب تک جاری رہا اس کا احساس ابو احمد کو نہ ہو سکا۔ اسے تو یہ بھی علم نہ ہو سکا کہ کب وہ بے ہوش ہوا اور وہ درندے اسے اٹھا کر کوٹھڑی میں پھینک گئے۔ ابو احمد کو ہوش دوپہر کے بعد اس وقت آئی جب کسی نے اس کی کوٹھڑی کا دروازہ کھول کر اس کے منہ پر پانی پھینکا۔ آنے والے کی شکل بھی وہ ڈھنگ سے دیکھ نہ پایا تھا۔ اس نے مٹی کے پیالے میں شوربہ نما کوئی چیز اس کے آگے اس طرح رکھی جیسے کتوں کے سامنے راتب پھینکا جاتا ہے اور عبرانی زبان میں بڑبڑاتا آگے بڑھ گیا۔ ابو احمد کو پانی کی طلب بڑی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ کوٹھڑی کے کونے میں موجود مٹی کی سراہی سے اس نے جیسے تیسے کچھ پانی اپنے حلق میں انڈیلا۔ اسے اپنی پشت پر انگارے دہکتے محسوس ہو رہے تھے۔ شمعون نے جسم ایسی جگہ سے جلایا تھا کہ وہ اپنا زخم بھی نہ دیکھ پائے اور اس کی کسک سے تڑپتا بھی رہے۔ ظلم ڈھانے کا یہ سائنٹیفک انداز ایک یہودی کے سوا اور کون جان سکتا تھا؟ اسے انتہائی صبر کا مظاہرہ کرنا تھا۔ یہی اسے سکھایا اور سمجھایا گیا تھا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ ظلم کی یہ رات بہت طویل ہے اور اس کا سویرا ابھی بہت دور۔ انہیں بڑے حوصلے اور استقلال سے اس صبح امید کا انتظار ہے۔ اس صبح امید کی راہ میں وہ اپنی جانوں کے نذرانے دیتے چلے آ رہے تھے۔ جانے ان کے جسموں کو دم پیدائش ہی جبر سہنے کی عادت پڑ جاتی تھی۔ کون سی ایسی فلسطینی ماں تھی جس کی کوکھ سے جنم لینے والا بچہ یہ نہ جانتا ہو کہ اس کی ماں پر اس کے جنم سے پہلے تشدد کے پہاڑ توڑے گئے تھے۔ وہ آہنی ارادوں والی ماؤں کے سپوت تھے جو ہاتھوں میں پتھر اٹھائے سہونی آتش و آہن کے سیلاب کو روکنا چاہتے تھے۔ دوستو، آپ کو اپنی نئی سیریز ٹارگٹ کہوٹا میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ طارق اسماعیل ساگر صاحب کی شہرا آفاق کہانی ہے۔ اس میں پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف عالمی ایجنسیوں کی سازشیں، را، موساد، CIA اور ISI کے مشنز، فلسطینی مجاہدوں کا اسرائیل کے مظالم کے خلاف جہاد اور ان ایجنسیز کے خفیہ ایجنٹس کے کارنامے بیان کیے گئے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ سیریز پسند آئے گی۔ اگر آپ طارق اسماعیل ساگر صاحب کی مزید کہانیاں سننا چاہیں تو ان کے چینل طارق اسماعیل ساگر اور پکار پر سن سکتے ہیں۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔